Good morning, students. I hope you all are well and doing your studies. Okay, so we already started the lesson number 3, the absorption by roots. Okay, the last two topics left from this topic. So today we are going to finish this chapter. Okay, then root pressure. Root pressure is what? Then root pressure, the pressure developed in the roots. Okay, it is the pressure developed in the roots due to the why due to the inward movement of the water basically. तो inward movement of water के कारण जो pressure develop हो रहा है that is the root pressure. Okay, it helps in pushing the sap of the plant upward through the stem. तो stem में से जो भी content है उसकी transportation के लिए help करता है. ओके वी कैन सी द एग्जाम्पल ऑफ द रूट प्रेशर. तो रूट प्रेशर की डेफिनेशन आप याद रखोगे. इन द अर्ली मॉर्निंग ड्रॉप ऑफ द वाटर अलॉन्ग द लीफ मार्जिन इज सर्टेन. व्हाट हैपन इन द मॉर्निंग व्हेन यू सी दैट दिस इज द प्लांट. ओके, यहाँ से वाटर निकलता, जहाँ आपने घास के पौधे को तो देखा ही होगा ना, यू सीन ग्रास. तो क्या होता है मॉर्निंग में, यहाँ पे पानी की बूंदें होती हैं, ओस की बूंदें हम जिसको बोल रहे होते हैं. तो वो पानी कहाँ से आया, टिप पे वाटर कहाँ से आया, दैट इज़ ड्यू टू द ग्यूटेशन बेसिकली. एक्चुअली इन द डे टाइम द स्टोमेटाज आर ओपन. ओके, here in the plant their stomatas are there. So in the morning time, in the daytime they are open. When the stomatas open, so there is a loss of water, है ना. So loss of water हो रहा है in vapor form. Okay, so loss of water is in the vapor form, but that is the transpiration basically. During the daytime transpiration take place, so the loss of water is so much in the plant. But at the night the stomatas they just close. अब स्टोमेटास क्लोज हो गया, बट रूट्स में से वाटर तो कोई ऐसा तो नहीं है कि डे टाइम में ही अब्जॉर्ब हो रहा है, नाइट में भी रूट हेयर्स वाटर को एब्जॉर्ब करते रहते हैं और वो पुश करते हैं उस सेल सैप को अपवर्ड. ठीक है, सो द प्रेशर इतना ज़्यादा बढ़ जाता है कि लॉस ऑफ वाटर जो होता है वो लिक्विड फॉर्म में ही होता है. ट्रांसपीरेशन में लॉस ऑफ वाटर इज इन द फॉर्म ऑफ वेपर्स, बट इन दिस केस द लॉस ऑफ वाटर इन द लिक्विड फॉर्म. आपने लिखा है कि लिक्विड ही होता है वहाँ पे. तो इन द मॉर्निंग ड्रॉप्स ऑफ वाटर अलॉन्ग द लीफ मार्जिन इन सर्टन प्लांट सच एज द टोमेटो में देखा, ग्रास में देखा, बनाना ने आपने नॉर्मली देखा. इट ड्यू टू द एक्सेसिव रूट प्रेशर बिकॉज द रूट प्रेशर इंक्रीज्ड. ओके, लॉस ऑफ वाटर तो हो नहीं रहा होता वेपर फॉर्म में, बट रूट प्रेशर बहुत बढ़ जाता है. दिस लॉस ऑफ एक्सेसिव वाटर इज कॉल्ड द guttation. So guttation is what? Guttation is the basically loss of water in the liquid form from the margin of the leaves. Okay, ये definition है. Guttation की definition is very important. It's so many time come in the paper. What is guttation? Guttation is a loss of water from the margin of the leaf in the liquid form, not in the vapor form. Okay, this is the difference between the guttation and the transpiration. Then the loss of water through the cut or sometime you know that this is the plant branch, हमने इस पूरे पौधे पे कुछ लिख दिया, काट दिया से, तो यहाँ से लॉस ऑफ वाटर भी होता है. ठीक है, इंजरी के कारण. दैट इज द लॉस ऑफ वाटर थ्रू द कट और इंजर्ड स्टेम इज द ब्लीडिंग. उसे हम ब्लीडिंग कहेंगे. तो देयर इज अ डिफरेंस बिटवीन द ट्रांसपीरेशन, बिटवीन द ग्यूटेशन, बिटवीन द ब्लीडिंग. तो ट्रांसपीरेशन इज द लॉस ऑफ वाटर इन द वेपर फॉर्म एंड ग्यूटेशन इज द लॉस ऑफ वाटर from the margin of the leaf in the liquid form, and bleeding is the loss of water again in the liquid form but loss of water through the cut or injured part. Okay, that is called the bleeding. So this is the difference from the guttation. Then root pressure is seen in the cell to cell osmosis in the root tissues. Under this pressure water loss form in the living cells root into the xylem. So rising, you know that xylem is responsible for the upward conduction of water from the roots to the all part of the body.
सो जाइलम में प्रेशर इतना ज़्यादा बढ़ जाता है कि वो अपवर्ड उसको पुश करता है, और पुश करने के कारण क्या होता है कि वाटर जो है वो स्टेम से होता हुआ लीव्स तक पहुंच जाता है. ओके, so this is the experiment. Okay, there are 3 chapters in the plant physiology. This is the first chapter we are going, the plant physiology. Okay, so out of these 3 chapters, 2 or 4, sometimes 3 or 4 experiments come in the paper. Okay, so you have the question come from these chapter, mostly experiment based questions, so don't neglect the experiments. बहुत अच्छे से पढ़ो, उनके रिलेटेड क्वेश्चन भी पढ़ो. ओके, टू डेमोन्स्ट्रेट द रूट प्रेशर. सो रूट प्रेशर को क्या था, हम मेजर कर सकते हैं. पॉटेड प्लांट ले लिया हमने, ठीक है. यहाँ पे यू कैन सी दिस इज़ अ पॉटेड प्लांट, उसकी स्टेम है. हमने सेटअप तैयार करा है, मरकरी मैनोमीटर लगाया है, जिससे हम इसको देखेंगे कि कैसे यहाँ से स्टेम से अटैच है ये. ठीक है, जैसे ही क्या होगा ऑब्जर्वेशन के वाटर विल स्टार्ट कमिंग आउट ऑफ द कट. अब क्या है, वाटर यहाँ से तो स्टेम तो अब्जॉर्ब कर रही है, लेकिन ऊपर से हमने लीव्स वगैरह को सबको काट दिया. तो अब क्या हो रहा है, वाटर यहाँ से आ रहा है और ये सैप को पुश कर रहा है, और ये मरकरी को पुश कर रहा है. देखिए, इसने मरकरी को पुश करके उसका लेवल अपवर्ड कर दिया. तो इससे हमें पता चलेगा कि रूट प्रेशर यहाँ पे जो है वो रिस्पॉन्सिबल है अपवर्ड मूवमेंट जो है मटीरियल की. तो वाटर rises in the connected tube due to the root pressure. The rising water raise the mercury level in the मैनोमीटर. मैनोमीटर के अंदर मरकरी का लेवल क्यों अपवर्ड हुआ, यहाँ पे देख सकते हो. लेवल अपवर्ड इसलिए हुआ कि यहाँ पे रूट प्रेशर ने सेल सैप को पुश करा. ओके, तो लीव्स आर नॉट देयर, ब्रांचेस आर नॉट देयर, सो लॉस ऑफ वाटर तो नहीं होएगा, बट अपवर्ड कंडक्शन ऑफ वाटर यहाँ पे हो रही है. ओके